Subject Environmental Studies, Class 2, Chapter 1, Plants Around Us, Lecture 2, Subtopic Types of Plants and Food from Plants. Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, students, today we will discuss about the types of plants and food from plants. Before I start this lecture, we will revise lecture 1 again. In previous lecture, we already learned the parts of a plant, and today we will discuss about the types of plants and food from plants. Okay, आज हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स और फूड फ्रॉम प्लांट्स टॉपिक डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम चैप्टर रीड भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 3 of chapter 1, term 3. Chapter name is Plants Around Us. Okay, chapter name is Plants Around Us. So let's start. Warm up. Fill in the missing letters to complete the words and match them with their correct picture. Okay, missing letters you have to fill, okay, in the blanks and match them with their correct picture. Okay, so first is C dash B dash A dash E. Now look at the picture. So very good. Cabbage, C A B B A G E. Cabbage. Where is cabbage? Yeah. Now next is B dash dash Y dash N. Very good. Banyan. 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 Okay. Where's banyan tree? Very good. Now next is P dash N dash A dash P dash E. So very good. Pineapple. PINEAPPLE. Apple. Pineapple. Where is pineapple? Very good. Now next is mint. 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 Very good. Okay, so let's start the chapter. Plants are important in our life. They provide food for us. They prepare food with the help of their leaves. They also provide food and shelter to many birds and animals. ओके, सो हमारे लिए हमारी लाइफ में जो प्लांट्स हैं वह बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें फूड देते हैं. प्रोवाइड मतलब देना, प्रोवाइड करना यानी फूड देते हैं हमें. दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स. ये क्या करते हैं, अपना फूड किसकी हेल्प से बनाते हैं, लीव्स की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं. They also provide food and shelter to many birds and animals. और ये क्या करते हैं, ये फूड तो देते ही हैं, साथ में शेल्टर. शेल्टर मीन्स आश्रय देना या जगह देने का काम भी करते हैं. किन्हें, बर्ड्स को और एनिमल्स को. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. हमने पार्ट्स पढ़े थे, वी ऑलरेडी लर्न parts of a plant. So read this.
We know that a plant has 5 main parts. 5 main parts कौन कौन से थे? Roots, stem, leaves, flowers and fruits. Okay. Now look at the picture. These are the flowers. Okay. ये क्या है? Flowers हैं. Okay. And fruits, leaves, stem and roots. Okay. 5 main parts are flowers, fruits, leaves, stem and roots. Okay students. Roots. Roots means जड़ें. Roots are the part of a plant which grows down in the soil. Soil means मिट्टी. Okay. जड़ें क्या होती है? जड़ें प्लांट का ही एक पार्ट होती है जो मिट्टी के अंदर बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं. ओके. दे हेल्प द प्लांट स्टैंड फार्म इन द सॉइल. मजबूती से खड़ा रखने में हेल्प करती हैं रूट्स. ओके. किसी भी प्लांट को खड़े रखने में जो रूट होती हैं वो हेल्प करती हैं. दे ऑल्सो हेल्प द प्लांट इन एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? रूट्स का, यानी जड़ों का. ओके. नेक्स्ट इज लीव्स. Leaves means पत्तियाँ. Leaves are the flat green part of a plant growing from the stem. They prepare food for the plants. Plants के लिए फूड प्रिपेयर यानी खाना बनाने का काम किसका होता है? पत्तियों का. और ये कहाँ से ग्रो करते हैं? ये करते हैं स्टेम से. ओके. नाउ नेक्स्ट इज फ्लावर्स. Most of plants have flowers. They are the colored part of the plant from which the seeds or fruits develop. ये क्या होते हैं? कलर्ड पार्ट होते हैं एक प्लांट का. ठीक है. जहाँ से सीड्स या फिर फ्रूट डेवलप होते हैं, बनते हैं. They usually grow at the end of the stem and last only for a short time. ये कुछ टाइम के लिए होते हैं. और ये कहाँ ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं स्टेम के एंड में. ओके. नेक्स्ट इज फ्रूट्स यानी फल. फ्रूट्स आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सीड्स. फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स. फ्रूट्स क्या है? ये भी पार्ट होते हैं किसका? प्लांट का ही पार्ट होता है, जिसमें क्या होते हैं? एक या दो सीड्स होते हैं. सीड्स मीन्स बीज. ओके. और फ्लावर्स चेंज किस में होते हैं? फ्रूट्स में. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर 2. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के टाइप हम देखते हैं. So, there are different types of plants. कई तरह के प्लांट्स होते हैं. तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो हैं ट्रीज, shrubs and herbs. Okay. So आज हम बात करेंगे ट्रीज, shrubs and herbs की. और फिर हम क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, थॉर्नी प्लांट्स की बात करेंगे. ओके. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ओके. ट्रीज, shrubs, herbs, climbers, creepers and thorny plants. So let's start. Trees. Big plants are called trees. Big plants
आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रीज। दे हैव स्ट्रॉन्ग थिक एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक्स। इनके कैसे होते हैं स्टेम? लकड़ी वाले और स्ट्रॉन्ग और मोटे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रंक्स। ओके, क्या कहते हैं? ट्रंक्स। They also have strong roots to hold them in the ground. इनकी रूट्स होती है, इनकी जड़ें होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं, ताकि वो जो ट्री को क्या कर सके? होल्ड कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज shrubs. Shrubs are the large plants that are smaller than the trees. They have several stems of wood. Their branches are borne on hard stem. They also live for many years. Hedges are made by shrubs. Shrubs भी large plant होते हैं, लेकिन ये trees से छोटे होते हैं और इनमें कई सारे लकड़ी के स्टेम्स होती हैं। ओके, और इनकी हार्ड स्टेम से ही जो ब्रांचेस होती हैं निकली होती है। ठीक है, दे ऑल्सो लिव फॉर मैनी ईयर्स। ये भी कई सालों तक जीते हैं। ठीक है, हेजेस मीन्स बाड़ा। ओके, तो हेजेस आर मेड बाय श्रब्स। जो बाड़ा बना होता है वो भी किससे बना होता है? श्रब्स से। ओके, श्रब्स के एग्जाम्पल्स अब हम देखते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स लाइक गुलमोहर, बोगनवेलिया, तुलसी एंड रोज। ओके, these are the example of shrubs. Next is herbs. Herbs, very small plants are called herbs. जो बहुत छोटे plants होते हैं उन्हें कहते हैं herbs. Okay, like coriander, mint, spinach and tomato. Okay, they have soft and weak stem. इनका जो तना होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। आपने देखा होगा जो कोरिएंडर धनिया होता है उसका तना कैसा होता है? बिल्कुल सॉफ्ट होता है। लाइक मिंट, स्पिनच एंड टोमेटो। ओके, इनका जो स्टेम है होता है वो सॉफ्ट और वीक होता है। दे लिव फॉर फ्यू मंथ्स ओनली। ये कुछ ही मंथ्स के लिए होते हैं। ओके, देयर लीव्स, फ्लावर्स एंड और शीड्स आर यूज टू फ्लेवर फूड इन मेडिसिन और फॉर देयर प्लेजेंट स्मेल। इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? मेडिसिन्स के लिए या किसी चीज़ में फ्लेवर के लिए। ओके, और अच्छी स्मेल के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर यानी धनिया, मिंट, ओके, स्पिनच और टोमेटो। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। सर्टेन प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन। और ये अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। ओके, सो दे नीड सपोर्ट टू ग्रो करने के लिए इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन, cucumber, bitter gourd, bottle gourd एंड मनी प्लांट। तो अंगूर के होते हैं प्लांट, क्यूकम्बर और करेला और जो लौकी और मनी प्लांट, इनके जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं क्लाइंबर, क्योंकि इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। आपके घर में मनी प्लांट भी होगा तो आप देखते हैं सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है उन्हें ग्रो करने के लिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज क्रीपर्स। सम वीक प्लांट्स स्प्रेड बाय क्रीपिंग। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम तो वीक होती ही है, तो वो कैसे ग्रो करते हैं? दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड अप द वॉल्स। या तो वो ज़मीन पर या वॉल पर ग्रो करते हैं। ओके, उन्हीं के सहारे से। ऑफन वाइंडिंग देमसेल्स अराउंड अदर प्लांट्स, या उनके आसपास जो प्लांट होता है उसमें अपने आप को
वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। उसके चारों तरफ उस प्लांट के अपने आप को सहारा देने के लिए वो वाइंड अप कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन, watermelon, etc. Okay. Next is thorny plants. As you know, some plants have thorns. आपको पता ही है कि कई प्लांट्स में थॉर्न्स यानी कांटे निकले होते हैं। ओके, इफ़ यू लुक एट द रोज प्लांट यू विल सी थॉर्न्स ऑन द स्टेम। आप जब अगर रोज़ प्लांट को देखते हैं तो आप देखेंगे उसके जो स्टेम होता है उसमें कांटे से निकले होते हैं, थॉर्न्स निकले होते हैं। ओके, so a tree or bush that has thorns is called thorny plant. For example, rose plant. These thorns protect them from their enemies. Thorns in desert plant also prevent the loss of water. For example, acacia, opuntia, and cactus, etc. These are the examples of thorny plants. Okay, acacia, rose, opuntia is known as prickly pear and cactus. तो इनमें सभी प्लांट्स में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। क्यों होते हैं? These thorns protect them from their enemies. ओके, ताकि वो अपने एनिमीज से बचा सके अपने आप को। ओके, acacia is babul and prickly pear means nagfani, and cactus and rose, these are the examples of thorny plants. Okay, so now we will discuss about cereals and pulses. ओके, आज हम सीरियल्स और पल्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सीरियल्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स. एज यू नो, प्लांट मेक देयर ओन फूड. वी गेट आवर फूड from plants in the form of cereals, pulses, vegetables and nuts. Okay, so let's start. Cereals. The various types of grasses that produce grains which can be eaten or are used to make flour are known as cereals. For example, rice, wheat, bajra, maize, etc. तो क्या होते हैं ये सीरियल्स? ये एक तरह की घास होती हैं जो ग्रेन्स मतलब अनाज पैदा करती हैं, जिन्हें हम खाते हैं या तो उनका आटा बनाकर हम खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट क्या होता है? गेहूँ। बाजरा, राइस, मेज़ यानी मक्का। ओके, तो ये क्या होते हैं? एक तरह की घास होती हैं जिनसे क्या मिलता है? हमें अनाज मिलता है। और इनका हम कैसे यूज़ करते हैं? इनका आटा बनाकर इनका यूज़ करते हैं हम। जैसे गेहूं की क्या बनाते हैं? आटा बना के गेहूं का रोटी बनाते हैं। वैसे ही बाजरा, राइस, ऐसे ही मेज़। ओके, तो ये हमें किससे मिलता है? प्लांट से। नाउ नेक्स्ट इज पल्सेस. पल्सेस मतलब दालें. द पल्सेस दैट वी ईट आर द सीड्स ऑफ द प्लांट्स. ये प्लांट के बीज होते हैं जिन्हें हम दाल कहते हैं। ठीक है, हम जो दालें खाते हैं वो क्या होते हैं? एक्चुअल में ये होती हैं सीड्स। किसकी? प्लांट्स की। ओके, पल्सेस हेल्प अस टू ग्रो. पल्सेस ग्रो करने में, हमारी ग्रोथ के लिए अच्छी होती हैं। दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. तो इन्हें क्या कहा जाता है? पल्सेस को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अरहर दाल, मूंग दाल, एट्सेट्रा. ओके, मूंग, ग्राम एंड अरहर. ओके, these are the examples of pulses. In the next lecture we will discuss about vegetable and fruits and nuts. Okay,
आज का होमवर्क देने से पहले हम पिछले लेक्चर का होमवर्क सॉल्यूशन देख लेते हैं. देन आई विल गिव यू होमवर्क related to this chapter. Okay, so this is the homework solution of lecture 1. Draw a picture of a plant and label its parts. So this is the picture of a plant and their parts. So there are 5 main parts in a plant: flowers, leaves, fruits, stem and roots. Okay students, so now today's homework, do page number 10. Okay, do page number 10, question B and C in your book. Okay, so question B, rearrange the letters to give meaningful sentences. Okay, so leaves of the plants make dash. So आपने क्या करना है, rearrange करना है. Okay, number 2, climbers have weak dash. And number 3, cactus has dash. Okay, now question C, fill in the blanks with suitable words. Okay, so words are given. Number 1, dash and dash are very small plants. Number 2, dash and dash are small plants. And number 3, dash and dash are very big plants. And number 4, dash and dash are creepers. Okay, so you have to write the answer in your book. So I repeat again, do page number 10, question B and C in your book. And if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.